हाँ बेटा, हम लोग इस बैच में लिटरेचर पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है ए फेलो ट्रेवलर। इस पाठ को लिखा है एजी गार्डनर ने। बता दें बेटा, थोड़ी बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लड़के ग्रामर पोर्शन अपनी कॉपी पर करके हमारे पास भेज रहे हैं। बहुत खुशी होती है। इससे यह लगता है कि हमारे विद्यार्थी जो है सच्ची लगन से अपना अध्ययन करेंगे। सच्चा अध्यापक होगा तो सच्चे शिष्य भी होने चाहिए। ठीक है। एक दो उनको कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप परेशान न हो। जब हम पूरी सिंथेसिस आपको पढ़ा लेंगे तो जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आपकी है वो दूर कर रहे हैं इस समय, उसी प्रकार से सुबह 9 बजे से हम वो आपको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन अभी चूंकि लिंक है, बीच में अगर हम कुछ करेंगे तो आपको तो फिर मज़ा नहीं आएगी, तो फिर हमको मज़ा नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये बेटा कि बहुत सारे लड़के जिनका छूट रहा है, क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि वे मेंबरशिप ले लें। तो जब उनको पास टाइम मिले, यानी कि उसका ज़्यादा उसका खर्च नहीं है, शायद 150 रुपया है, तो वो जो है आप मेंबरशिप ले लोगे तो जब चाहोगे तब आप खोल करके मोबाइल पढ़ सकते हो। किसी पापा के सामने प्रॉब्लम है, किसी के मम्मी वाली मोबाइल से पढ़ते हैं, प्रॉब्लम है, बिजी है, तो इसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि मेंबरशिप ले लें। जब मोबाइल खाली रहे तब अपना, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा बेटा। हमारी बात सुनो ना, हमारी बहुत लाभ मिलेगा। तो जो इच्छुक हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए ले लें, क्या प्रॉब्लम है, उनका अपना चलता रहेगा। ठीक है हमारी बात। तो ये पढ़ रहे थे बेटा ए फेलो ट्रेवलर। इस पाठ को लिखा है बेटा एजी गार्डनर ने। इसके पहले हमने जो पढ़ा उसको एक बार सुनो तो फिर आगे पढ़ाए हमने। ध्यान सुनो बेटा, जो पढ़ा चुके हैं उसको सुनो ध्यान से। बीइंग एलोन इन द कंपार्टमेंट ऑफ, इसके पहले वाले एपिसोड में जो पढ़ा था उसको एक बार सुन लो। Being alone in the compartment of a train running through the darkness of the night and making a noise on its path, the writer A.G. Gardner wanted to take the real enjoyment of freedom like a festival. According to the writer A.G. Gardner, anybody can take the real enjoyment of freedom like a festival if he is alone in the compartment of a train running through the darkness of the night and making a noise on its path. He can open or shut both the windows of the compartment as a festival of freedom. Opening or shutting both the windows of the compartment as a festival of freedom, he can continue his journey from one place to another place without any opposition. Now, he can choose his sitting place in any corner of the compartment. हिंदी जैसा लगे बेटा, जब पाठक बोले जैसे तुमको लगे हिंदी बोल रहे हैं। He can choose his sitting place in any corner of the compartment, or he can change his sitting place turn by turn. Lying at full length on the seats of the compartment, he can take the enjoyment of breaking the rule and regulation of DORA. In this way, he can break the heart of DORA. The defense of Rime Act will not know who has broken her heart because there will be neither evidence nor witness against him. In the absence of witness and evidence, he can protect himself from the punishment provided in DORA. In this way, being alone in the compartment of a train running through the darkness of the night and making a noise on its path, the writer A.G. Gardner wanted to take the real enjoyment of freedom like a festival. इतना हम पढ़ चुके थे बेटा, नहीं अभी और आगे ना बेटा। तो but the matter of sadness was that on that night he could do nothing of them, and whatever was done by him was very simple. When all the passengers of the compartment went out, so the writer kept his newspaper aside. He stretched his arms and legs, stood up from his seat,
and went where the window in the compartment was. He threw his eyes outside of the compartment through the window, so that he might see the calm summer night through which he was traveling. When the writer threw his eyes outside of the compartment through the window, so he came to know that the pale clouds were still lingering in the northern sky. Afterwards, the writer went from one corner of the compartment to another corner. He again threw his eyes outside of the compartment through the other window. Afterwards, he lit a cigarette, sat down on his seat, and taking the newspaper in his hand, he started to read it again. In the meantime, the writer A.J. Gardner came to know that he was not alone in the compartment because he had a fellow traveler. His fellow traveler came and sat on his nose. इतना हम पढ़ चुके थे बेटा. एक चीज बताएं बेटा, बोझ समझ के ना पढ़ना, एक खेल की तरह पढ़ाई करना. जैसे खेल में आनंद आता है बेटा, उसी प्रकार से पढ़ने में भी आनंद आपको आना चाहिए. यह पाठक स्टाइल है. और लगे कि बिल्कुल हिंदी जैसा, अंग्रेजी भी हिंदी जैसा लगे, तब समझो कि पाठक ने पढ़ाया बेटा. हमारी बात सुनो ना, ये बार बार हम रिपीट इसलिए करते हैं बेटा कि जिससे आपका फ्लो बन जाए. अब शुद्ध ग्रामर बोलते हैं बेटा, यानी कि आपका इसमें कोई करेक्शन नहीं है, तो आपको इससे ग्रामर भी, स्पीकिंग भी आ जाएगी. आपको बताएं बेटा स्पीकिंग कैसे आएगी, आपको कैसे बोलना आएगा. तो जब पूरा पाठ आप पढ़ लो तो आप अकेले खुद उसी ढंग से बोलना सीखो, जैसे हमको सिखाया गया था. जब हम पढ़ते थे तो टी.एन. सिंह हमारे गुरुजी ने सिखाया था ग्रेजुएशन में कि बेटा जितना यहाँ हम बोलें आपको समझ में आता है. लड़कों ने कहा हाँ, तो इसको बेटा घर पर जाकर अकेले में खुद ही बोलना. 2-4 दिन आपकी गलती होगी, उसके बाद अपने आप गाड़ी जो है रास्ता पकड़ लेगी और स्पीड पकड़ने लगेगी. तो आपको भी हम यही सलाह देते हैं बेटा कि जब तक आप खुद नहीं बोलोगे, डरते रहोगे, तब तक आप हमेशा पीछे रहोगे. खुद बोलो, गलत होगा लेट गलत होने दो. 10 दिन गुजरेगा जब आप खुद अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे. ठीक है, क्योंकि ग्रामर हम पढ़ाए रहे हैं और आप अभ्यास केवल आपको करना है ना बेटा. जितना बढ़िया से बढ़िया आप जो है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलोगे, ये चीज़ तो आनी चाहिए यार, बोलना और लिखना. तो लिखने के लिए काम दे ही दिया है, जो सीट आपको दिया है, जो आपको यूट्यूब पे 60 क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया है, सब इसको लिखो 3-3 बार, तो लिखना उससे आ जाएगा. और इधर स्पीकिंग जो बोल रहे हैं, इससे आपकी स्पीकिंग मजबूत हो जाएगी. फिर दोबारा आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, सीधे जो है NDM सिलेक्शन होता है बेटा, साफ साफ बता दें. तो चलें, पक्का इतना विश्वास रखोगे? गुड, शुरू करते हैं बेटा. अब वह उसका फेलो ट्रेवलर कौन था? अभी आप ऊपर ह्यूमरस स्टाइल पढ़ रहे थे बेटा, अभी ये सब ह्यूमरस ही चलेगा नीचे तक, हंसी मजाक वाली भाषा, ह्यूमरस स्टाइल में उन्होंने शुरुआत की है. अभी सब ह्यूमर चलेगा, जब सीरियस आएगा, जब अध्यात्म जोड़ेगा तब हम बताएंगे. अभी मौज से केवल पढ़ो. क्या लिखा बेटा? अब उसका सहयात्री कौन था? देखो देख, लिखा बेटा, ही वाज वन ऑफ दोज. ही माने वह, वाज माने था, वन ऑफ दोज माने उनमें से एक. वन ऑफ दोज माने उनमें से एक. विंगी माने पंखधारी, निप्पी माने सूंडधारी. अरे मच्छर कैसे सूंड नहीं होता है, चुभ देता है. विंगी माने पंखधारी, निप्पी माने सूंडधारी, इंट्रेपिड माने करेजियस, यानी कि हरामी पीस वाला जो करेजियस होता है, दुष्ट जिसको बोलते हैं. इंट्रेपिड माने दुष्ट, हरामी पीस. इंसेक्ट माने कीड़ा, कीड़ों, कीड़ा कीड़ा. अरे यार कीड़ा नहीं जानते हो, यानी कि वह पंखधारी, सूंडधारी और दुष्ट कीड़ों में से एक था. दैट माने जिसे, वी कॉल हम बुलाते हैं, वैगवली माने स्पष्ट रूप से, क्लियरली. मॉस्किटो माने मच्छर, जिसे हम साफ साफ क्या कहते हैं? मच्छर कहते हैं. अब बताइए लेखक का सहयात्री कौन था? मच्छर. अरे यार मच्छर कौन सा यात्री होता है? लेकिन यहाँ पर लेखक मच्छर को पर्सनिफाइड कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है.
मच्छर को मानव माना जा रहा है, क्योंकि दिमाग लगाओ विद्यार्थी हो, यहाँ मच्छर के लिए क्या लगना चाहिए बताओ? अरे गैया के लिए इट लगाते हो, भैंसिया के लिए इट पर प्रोनाउन लगाते हो, यहाँ मच्छर के लिए ही लग रहा है, तो ही किसके लिए आता है बेटा? बोलो। ही जो है पर्सन के लिए आता है बेटा। आई बात समझ? यानी कि यहां पर मच्छर को क्या किया गया? पर्सनिफाइड किया गया। वह पंखधारी सूंडधारी दुष्ट कीड़ों में से एक था, जिसे हम बैगोली माने साफ साफ, मॉस्किटो माने मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। आई माने मैंने, फ्लिक्ड ऑफ माने उड़ा देना, मैंने उसे उड़ा दिया। माई नोज माने अपनी नाक पर से, मैंने अपने सहयात आके नाक पर बैठ गया ना, तो लेखक ने अपनी नाक पर से मच्छर को क्या कर दिया? उड़ा दिया। तब क्या किया? एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। तब फिर उसने एक टूरिस्ट की तरह, अरे टूरिस्ट माने जानते होगे यार, एक टूरिस्ट की तरह उसने पूरे डिब्बे का जो है भ्रमण किया। टूर किया मतलब पूरे डिब्बे का भ्रमण किया। इन्वेस्टिगेटेड इस 3 डायमेंशंस। इन्वेस्टिगेटेड माने अवलोकन किया, इन्वेस्टिगेटर माने अन्वेषक, तो इन्वेस्टिगेटर माने अवलोकन किया। इट्स माने इसके, इसके मतलब किसके? डिब्बे के। 3 डायमेंशंस माने 3 दिशाओं, मतलब डिब्बे के एक कोने में खड़े होकर उसने तीनों दिशाओं का क्या किया? अवलोकन किया। एक इन्वेस्टिगेटर की तरह डिब्बे के एक कोने में खड़े होकर के उसने डिब्बे के बचे हुए तीनों दिशाओं का अवलोकन किया, यानी निगरानी की, देखा। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर जाकर विजिट मारी, यानी उस डिब्बे में जितने दरवाजे और खिड़की थे सब पे जा करके उसने विजिट मारी कि साफ सफाई हुई है कि नहीं। फ्लैटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के, प्रकाश मतलब समझ लो ना, अरे जहां बल्ब जल रहा था गाड़ी में, डिब्बे में, प्रकाश के चारों ओर जाकर के फड़फड़ाया। फ्लैटर्ड क्या? फड़फड़ाया। फिर डिसाइडेड, फिर एक न्यायाधीश, मच्छर क्या बन गया? न्यायाधीश। एक न्यायाधीश की तरह मच्छर ने निर्णय लिया दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज उतनी रुचिकर नहीं थी, इंटरेस्टिंग माने रुचिकर, एज अ लार्ज एनिमल, जितना कि वह भारी भरकम जानवर इन द कॉर्नर, डिब्बे के कोने में बैठा था। भारी भरकम जानवर बताओ डिब्बे में कौन है? अरे जानवर तो सभी लोग हैं यार, हम लोग थोड़ा सुबुद्ध जानवर हैं। तो लेखक अपने आप को क्या करा है? जानवर। अरे डिब्बे में लेखक ही है तो जानवर कौन हुआ? फिर भारी भरकम जानवर कौन हुआ? लेखक हुआ, जो डिब्बे के कोने में बैठा था। इसलिए केम माने आया, कौन आया? मच्छर आया। एंड हैड ए लुक, और एक दृष्टिपात कर दिया। अरे लुक माने दृष्टि, उसने एक दृष्टिपात कर दिया एट माई नेक, मेरी गर्दन पर, यानी कि आया और मेरी गर्दन पर दृष्टिपात कर दिया, मतलब मेरी गर्दन पर आकर के चढ़ के बैठ गया, यानी कि लेखक के गर्दन पर मच्छर बैठ गया। हिंदी आ गई इतनी? ध्यान सुनो बेटा, हंसी मजाक वाली भाषा है, ध्यान सुनो। क्या कहा बेटा? लेखक का सहयात्री पंखधारी सूंडधारी और हरामी पीस कीड़ों में से एक था, जिसे हम साफ साफ मच्छर कहते हैं। लेखक ने अपनी नाक पर से अपने सहयात्री को उड़ा दिया। इसलिए एक टूरिस्ट की तरह मच्छर ने पूरे डिब्बे का क्या क्या भ्रमण किया। एक इन्वेस्टिगेटर की तरह, अन्वेषक की तरह डिब्बे के एक कोने में खड़े होकर के उसने बचे हुए तीनों दिशाओं का अवलोकन किया। एक इंस्पेक्टर की तरह, अरे पुलिस इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर की तरह उसने प्रत्येक खिड़की दरवाजे पर विजिट मारी, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया कि साफ सफाई हुई है कि नहीं। फिर एक न्यायाधीश की तरह मच्छर ने निर्णय लिया कि डिब्बे में कोई भी चीज उतनी आकर्षक नहीं थी, उतनी रोचक नहीं थी,
जितना कि वह भारी भरकम जानवर लेखक जो डिब्बे के कोने में बैठा था। इसलिए मच्छर आया और उसकी गर्दन पर बैठ गया। ये लिखा, शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। टेकिंग द न्यूज पेपर इन हिज हैंड, जो हिंदी बोले उसकी अंग्रेजी सुनो। बहुत सरल सा बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बना रहे। देखो, टेकिंग द न्यूज पेपर इन हिज हैंड, द राइटर बिगैन टू रीड इट अगेन। इन द मीन टाइम the writer A.G. Gardner came to know that he was not alone in the compartment, but he has a fellow traveler. His fellow traveler came and sat on his nose. तो the writer A.G. Gardner made his, देखो यार ग्रामर देखो, the writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his nose. The writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his nose. So like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. Like an investigator, standing in a corner of the compartment, he investigated the rest 3 dimensions of the compartment very well. Afterwards, like an inspector, he visited each door and every window of the compartment very well. He fluttered around the light. Afterwards, like a judge, the mosquito decided that there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So the mosquito came and sat on his neck. आया, उसकी गर्दन पर क्या हो गया, बैठ गया। एक बार फिर अपने हाथ में, हिंदी सुनो फिर उसके बाद अंग्रेजी बोलेंगे 2 बार, जिससे पक्का हो जाएगा। अपने हाथ में समाचार पत्र लेकर के लेखक ने डिब्बे में दोबारा उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय लेखक को पता लगा कि वह गाड़ी के डिब्बे में अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक सहयात्री भी था। उसका सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया। लेखक का सहयात्री कोई नहीं था, एक पंखधारी सूंडधारी महाहरामी पीस कीड़ा था, जिसे हम साफ साफ क्या कहते हैं, मच्छर कहते हैं। लेखक अपनी नाक पर से मच्छर को क्या कर दिया, उड़ा दिया। इसलिए एक टूरिस्ट की तरह मच्छर ने पूरे डिब्बे का क्या किया, भ्रमण किया। एक इन्वेस्टिगेटर की तरह डिब्बे के एक कोने में खड़े होकर के उसने तीनों दिशाओं का अवलोकन किया। फिर एक इंस्पेक्टर की तरह उसने प्रत्येक खिड़की और दरवाजे पर विजिट मारी। सब दिखाई दे रहा। मच्छर, लेखक की निगाह में मच्छर क्या क्या बन गया, एक टूरिस्ट बन गया, एक इन्वेस्टिगेटर बन गया, एक इंस्पेक्टर बन गया। नंबर एक इंस्पेक्टर की तरह उसने प्रत्येक खिड़की दरवाजे पर जाकर के विजिट मारी, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। जज भी बन गया। एक जज की तरह उसने तब निर्णय लिया कि डिब्बे में कोई भी चीज उतनी रुचिकर नहीं थी जितना कि वह भारी भरकम जानवर लेखक डिब्बे के कोने में बैठा था। इसलिए मच्छर आया और उसकी गर्दन पर बैठ गया। यही बोलेंगे लैंग्वेज घोड़ा पाठक स्टाइल। टेकिंग द न्यूज पेपर इन हिज हैंड, द राइटर स्टार्टेड टू रीड इट अगेन। इन द मीन टाइम the writer A.G. Gardner came to know that he was not alone in the compartment, but he has a fellow traveler. His fellow traveler came and sat on his nose. His fellow traveler was none but a wingy, nippy and rude insect that is called mosquito. The writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his nose. So like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. Like an investigator standing in a corner of the compartment, he investigated the rest 3 dimensions of the compartment very well. Afterwards, like an inspector, he visited each door and every window of the compartment very well. Now, he fluttered around the light.
Afterwards, like a judge, the mosquito decided that there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat on his neck. आया और उसकी गर्दन पर क्या हो गया, बैठ गया. कुछ समझ में? अंतिम बार एक बार फिर सुनो बेटा, ध्यान सुनो बेटा. Taking the newspaper in his hand, the writer A.J. Gardner started to read it again. In the meantime, he came to know that he was not alone in the compartment, but he had a fellow traveler. His fellow traveler came and sat on his nose. Now, his fellow traveler was none but a wingy, nippy and rude insect that is called mosquito. The writer A.J. Gardner made his fellow traveler fly away from his nose. So like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. Like an investigator, he investigated the rest 3 dimensions of the compartment very well. Afterwards, like an inspector, the mosquito visited each door and every window of the compartment very well. He fluttered around the light. Afterwards, like a judge, the mosquito decided that there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat on his nose. क्वेश्चन मैडम, पूरा एपिसोड देखो तब जाकर के पाठक की भावना समझ आएगी. और ऐसे मोबाइल खोल करके झट से देख कर सोचो हमको आ गया, आ जाएगा लेकिन भूल जाएगा. अब पाठक स्टाइल में भूलता भी नहीं है. लड़के शिकायत करते हैं, गुरुजी हमको तैयार रहता है लेकिन भूल जाता है. एक लड़के ने पूछा, हमने कहा था हजारों की भीड़ में आपके पिताजी खड़े हैं, खो गए हैं, बताइए उन्हें खोज लोगे कि नहीं, पहचान जाओगे अपने पिताजी को नहीं? तो लड़के ने कहा हाँ गुरुजी. तो हमने कहा बेटा विषय को अपना बाप बना लो. विषय को अपना बाप बना लो मतलब बाप के सानिध्य में हमेशा आप रहते हैं. तो बाप कभी भूलता है क्या? बोलो, नहीं भूलता है. उसी प्रकार से विषय को बाप बना लो, उसके टच में हमेशा बने रहो, कभी जो है आप उसको भूलोगे नहीं. सुना है बेटा? अब आगे देखते हैं. लिखा बेटा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन. मैंने दोबारा उसको उड़ा दिया. किसको? मच्छर. कहां पर से बताओ? अरे गर्दन बैठा था ना. मैंने दोबारा उसको अपनी गर्दन पर से उड़ा दिया. फिर ही स्किप्ड अवे, वह फुदक करके निकल गया. फुदकना जानते हो ना? जैसे कि जब नान करे होगे तो एक पैर पर नहीं दौड़ते थे, उसको फुदकना बोलते हैं. स्किप्ड अवे इसको बोलते हैं. वह फुदक करके निकल गया. फुदकना समझ गए ना? टुक एन अदर जाउंट. टुक माने लिया, एन अदर माने दूसरा, जाउंट माने छोटी सी यात्रा. और दूसरी छोटी सी यात्रा की राउंड द कंपार्टमेंट. पूरे डिब्बे में उसने एक दूसरी छोटी सी यात्रा की. चूंकि मच्छर की निगाह में डिब्बे में कोई भी चीज उतनी रुचिकर नहीं थी जितना कि वह भारी भरकम जानवर लेकर, इसलिए क्या किया? रिटर्न, वापस आया. एंड सीटेड हिमसेल्फ, और खुद बैठ गया. इम्पुडेंटली माने दुष्टता पूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. देखो इधर, आया और दुष्टता पूर्वक मेरे हाथ के पीछे फिर बैठ गया. तिबारा हो गया बेटा. एक बार नाक पे बैठा था, दूसरी बार गर्दन पे, और तिबारा आकर के हाथ के पीछे बैठ गया. किसने? कौन? मच्छर. हाँ, लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया. इट इज एनफ आई सेड. मैंने कहा, मैंने मतलब लेखक, लेखक ने कहा इट इज एनफ, बहुत हो गया मच्छर महोदय. हे मच्छर महोदय, बहुत हो गया. मैग्निमिनिटी हैज इट्स लिमिट. मैग्निमिनिटी माने दया, लिख लो. मैग्निमिनिटी माने दया. हैज इट्स लिमिट, दया की एक सीमा होती है. हे मच्छर महोदय, बहुत हो गया, दया की एक सीमा होती है, और तुम दया की बाउंड्री को पार कर रहे हो. ट्वाइस माने 2 बार. यू हैव बीन वार्न्ड, पश्चिम, तुम्हें 2 बार सावधान किया गया है कि
आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं कुछ विशेष प्रकार का आदमी हूं। आई एम समवन इन पर्टिकुलर माने विशेष, मैं कुछ विशेष प्रकार का आदमी हूं कि माई अगस्ट पर्सन, मेरा सम्माननीय व्यक्तित्व, मेरा जादुई व्यक्तित्व। अगस्ट माने मजेस्टिक, मजेस्टिक माने जादुई, माने वो जो अंदर सम्मान, सम्मान वाला जो व्यक्तित्व है। रेसेंट्स माने रोकता है, रेसेंट्स माने रोकता है। द टिकलिंग माने गुदगुदाने को। इम्पर्सिनेंस माने अधीरता पूर्वक, डिसरेस्पेक्ट अधीरता पूर्वक। आप स्ट्रेंजर्स माने अजनबियों को। मेरा सम्माननीय व्यक्तित्व, सम्माननीय व्यक्तित्व, अगस्त पर्सन समझे ना। मेरा जादुई व्यक्तित्व जो अंदर है, मेरा जो सम्माननीय व्यक्तित्व है, वह किसी अजनबी के द्वारा, स्ट्रेंजर माने अजनबी के अधीरता पूर्वक गुदगुदाने को, दुष्टता पूर्वक गुदगुदाने को, असभ्यता पूर्वक गुदगुदाने को रेसेंट्स माने मना करता है। अब तुम 2 बार गुदगुदा चुके, एक बार नाक पे, दूसरी बार गर्दन पर, और यहां आप कबड्डी खेल रहे हो कहां, हाथ के पीछे, पिछवाड़े। इसलिए तुम मेरी निगाह में क्या हो, अपराधी हो। इसलिए आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं एक काली टोपी पहनता हूं। ध्यान सुनो बेटा, जिस दिन न्यायाधीश को मृत्युदंड देना होता है, उस दिन वह अदालत में काली टोपी पहन के जाता है। तो लेखक कह रहा है कि मैं काली टोपी, एज्यूम माने धारण करता हूं, मैं काली टोपी पहनता हूं, यानी कि जज की तरह मैं काली टोपी पहनता हूं। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। क्या देता हूं? मृत्युदंड देता हूं। आई कंडेम यू टू डेथ। क्यों? कि जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। जस्टिस माने न्याय, डिमांड्स इट माने मांग, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कानून की इमारत इसके लिए इनाम देती है। ये लिखा, यहीं तक देखो, ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें। जो बोलेंगे अंग्रेजी उसकी हिंदी। लेखक ने अपनी गर्दन पर से मच्छर को उड़ा दिया, इसलिए मच्छर ने डिब्बे में एक फिर छोटी सी यात्रा की। चूंकि मच्छर की निगाह में डिब्बे में कोई भी चीज उतनी रुचिकर नहीं थी जितना कि वह भारी भरकम जानवर लेकर डिब्बे के कोने में बैठा था। इसलिए मच्छर वापस आया और लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया। लेखक को मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, बहुत हो गया, इट इज एनफ, बहुत हो गया। दया की एक सीमा होती है और तुम बच्चों दया की बाउंड्री को पार कर रहे हो। तुम्हें 2 बार सावधान किया गया कि मैं कुछ विशेष प्रकार का इंसान हूं जो किसी अजनबी के द्वारा दुष्टता पूर्वक गुदगुदाने को पसंद नहीं करता। इसलिए मेरी निगाह में तुम 2 बार गुदगुदा चुके, तिबारा फिर लगे हो ना बेटा। तो तुम जो है मेरी निगाह में क्या हो, अपराधी हो। तो अपने एक जज की तरह, देखो मेरी तरफ, एक जज की तरह अपने सर पर काली टोपी पहनकर लेखक ने मच्छर के खिलाफ निर्णय सुना दिया कि हे मच्छर महोदय, अब तुम बच्चों पलटाए जाने वाले हो, अब तुम मारे जाने वाले हो, क्योंकि न्याय की यही मांग है और कानून की इमारत ऐसे कार्यों के लिए इनाम देती है। सिविल लाइन वाली इमारत यानी कि अदालत। इतना समझ आ गया? ध्यान सुनो बेटा, शुरू करें। द राइटर A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his neck. The writer A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his neck. So once again, like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. Now, in the eyes of the mosquito,
There was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat rudely on the back of the writer's hand. So addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says, that it was enough done by him. Because mercy has its limit, and he was crossing the boundary of mercy. He has been warned two times that he was a particular man who disliked the tickling of any stranger. So he was guilty. So putting on a black cap like a judge on his head. Putting on a black cap like a judge on his head, the writer A.G. Gardner issued a judgment against the mosquito that he was about to be killed, because justice demands it and the building of law gives reward for such a work. क्यों कानून की इमारत ऐसे कार्यों के लिए क्या देते हैं? It is the demand of justice and the building of law gives reward for such a work. यानी कि जो आपको परेशान कर रहा है उसे आप अगर पलटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कानून है, ध्यान सुनो। कुछ समय आया, एक बार हिंदी फिर बताते हैं जिससे पक्का हो जाए। क्या कहा? लेखक ने अपनी गर्दन पर से अपने सहयात्री को उड़ा दिया, इसलिए एक टूरिस्ट की तरह मच्छर ने पूरे डिब्बे में एक छोटी सी यात्रा की। चूंकि मच्छर की निगाह में डिब्बे में कोई भी चीज उतनी रुचिकर नहीं थी जितना कि वह भारी भरकम जानवर लेखक डिब्बे के कोने में बैठा था, इसलिए मच्छर वापस आया और उसके हाथ के पीछे बैठ गया। मच्छर को संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि हे मच्छर महोदय, बहुत हो गया। दया की एक सीमा होती है और तुम दया की बाउंड्री को क्या कर रहे हो? पार करो। तुम्हें 2 बार सावधान किया गया कि मैं कुछ विशेष प्रकार का इंसान हूं जो किसी अजनबी के द्वारा गुदगुदाने को पसंद नहीं करता हूं। यानी तुम मेरी निगाह में तुम क्या हो? अपराधी हो। इसलिए एक न्यायाधीश की तरह अपने सर पर काली टोपी पहनकर लेखक ने मच्छर के खिलाफ निर्णय सुना दिया कि अब तुम पलटाए जाने वाले हो, अब तुम मारे जाने वाले हो, क्योंकि न्याय की यही मांग है और कानून की इमारत ऐसे कार्यों के लिए इनाम देती है। कुछ मजा आई? मच्छर को जब मृत्युदंड दिया जा रहा, तो ये ह्यूमर है बेटा, ह्यूमरस स्टाइल से बोलते। शुरू कर बेटा, कुछ पहले पढ़ा, ध्यान सुनो बेटा। द राइटर A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his neck. So once again, like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. In the eyes of the mosquito, मच्छर की निगाहों में, in the eyes of the mosquito, there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat rudely on the back of the writer's hand. Addressing the mosquito, the writer A.G. Gardner says that it was enough done by him, because mercy has its limit, and he was crossing the boundary of mercy. He has been warned 2 times that he was a particular man who disliked the tickling of any stranger. So he was guilty. The putting on a black cap like a judge on his head, the writer A.G. Gardner issued a judgment against the mosquito that he was about to be killed, because it is the demand of justice and the building of law gives reward for such a work. कानून की इमारत ऐसे कार्यों के लिए क्या देती है? इनाम देती है। कुछ समझ बेटा? पक्का? अरे यार, यहाँ मुर्गा हलाल हो रहा है, मजा आ रही है खाने में कि नहीं? पक्का? एक बार फिर शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। लैंग्वेज बोलो। द राइटर A.G. Gardner made his fellow traveler fly away from his neck. So once again, like a tourist, the mosquito made a short journey in the compartment. In the eyes of the mosquito,
there was nothing so interesting in the compartment as the writer, who was like a large animal sitting in the corner of the compartment. So he came back and sat rudely on the back of the writer's hand. At seeing the master, the writer A.J. Gardner says that it was enough done by him, because mercy has its limit, and he was crossing the boundary of mercy. He has been warned 2 times that he was a particular man who disliked the tickling of any stranger. So in his eyes he was guilty. The putting on a black cap like a judge on his head, the writer A.J. Gardner issued a judgment against the mosquito that he was about to be killed, because it is the demand of justice and the building of law gives reward for such a work. ऐसी कार्यों के लिए कानून की इमारत क्या देती है? इनाम देती है। आगे होगा बेटा, सुनो पक्का। तो जो देखो बेटा, जिन बच्चों को मौका नहीं लग रहा है, बीच में मोबाइल में फ़ोन वगैरह भी आ जाते हैं बेटा, तो डिस्टर्ब तो होते होगा। तो आपको ये सलाह देते हैं कि आप मेंबरशिप गेन कर लें। अगर पढ़ लेते हो तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बीच बीच में आपका छूट भी जाएगा, तो कक्षा छूटनी नहीं चाहिए। उसके लिए आपको सलाह देते हैं कि आप जो है मेंबरशिप ले लें 1 महीने के लिए। तब तक हो सकता है कोचिंग खुल जाएगी, तो कोचिंग में आओगे तो आगे पढ़ाएंगे ही, पक्की बात। तो आपको सलाह यही है कि मेंबरशिप जो है ले लें, ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।